Hello, friends. This is film critic Awan from Cine Blues, and today we have a lot of guests on my show to discuss on Brahmastra. Brahmastra is releasing in the theaters on the 9th of September, and we will be discussing the opinion and the expectations from this ambitious vehicle, which is basically produced by Dharma Productions, that is Karan Johar, and made by Ayan Mukherjee. It stars Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, superstar Amitabh Bachchan, yes, and Nagarjuna, Moni Roy in the pivotal roles. So I'm pleased to have actor Danesh Iqbal, who has recently acted in Maharani web series, which is streaming on Sony Live, and also he has acted in a popular web series starring Ravina Tandon, that was Aranyak, which came during the fag end of last year. I also have Gaurav Dwivedi, who is also an actor. He came in Criminal Justice. I was also seen in the web series or Disney Hotstar, that is Humans, and he's a popular face in the films as well. He acted in films like Manji the Mountain Man as well, and along with them I also have two of my guests, that is Abhijit. Hi Abhijit, and Sandeep. They are film critics, passionate film buffs, movie buffs, you can say, and they also review, analyze films, and also enjoy storytelling. So सबसे पहले मैं ये आप लोगों से जानना चाहूंगा एक एक करके कि देखिए, ब्रह्मास्त्र एक ऐसा फिल्म है जिसको अभी 10 साल लगे हैं बनने में, 5 साल तो इसके पूरे प्रोडक्शन में चले गए, and it is made on a hoping budget of 300 crores. सर, सबसे पहले मैं दनेश जी को पूछना चाहूंगा कि इतना वेट जो ऑडियंस ने किया है, ये फिल्म क्या will it be worth the wait? 10 साल 5 साल का प्रोडक्शन अब फाइनली 9 सितंबर को जो आ रहा है, तो विल इट बी वर्थ द वेटिंग पीरियड? दानिश जी, आपके व्यू। बिल्कुल, आई मीन इतना मैग्नम ऑपस जबरदस्त फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है, और आई वाज फॉर्चुनेट टू वॉच द ट्रेलर ऑफ दिस मूवी जी। आई वेंट टू वॉच or something like over there, you know. I watched the trailer of this movie, and it was like I was taken by surprise, like my god, itna acha production, itni production quality hai movie ki. See, so it's worth watching, it's worth going to cinema, and definitely I'm looking forward to it, and hopefully people will love this film, definitely. Yeah. अच्छा, गौरव जी, आपके क्या विचार हैं? क्या आप भी सहमत हैं कि पीपल आर गोइंग टू लव द फिल्म? आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है? अगर इतने साल लगे हैं और इतने सैकड़ों लोगों ने काम किया है तो कुछ तो अच्छा होगा जी। मैं उम्मीद करता हूं कि फिल्म अच्छी हो। इतनी मेहनत की है लोगों ने, इतना टाइम लगाया है, और हम देखते हैं जैसे हॉलीवुड में बहुत फिल्में बनती हैं जो सुपर हीरोज की होती हैं जी। ये हमारा वर्जन है इंडिया का, तो मैं तो देखने के लिए व्याकुल हूँ। देख के मालूम पड़ेगा कैसा है। आई एम एक्साइटेड। अच्छा, अभिजीत के पास हम जाएंगे। अभिजीत, क्या सोच विचार हैं आपके ब्रह्मास्त्र के बारे में? So you know, as a audience, I'm just an audience, so I am a bit confused at this stage. ठीक है, क्योंकि I don't know what to expect from this movie. ये 10 साल से बनी हुई है, वैसे देखो तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी लो भी कह सकते हो क्योंकि काफी सारी मूवीज पिटी है, बट हार्ट ऑफ हार्ट्स आई नो दैट बॉलीवुड नीड्स अ बिग हिट, सो हार्ट ऑफ हार्ट्स आई वांट दिस मूवी टू अ बिग हिट। बट क्या मैं पहले दिन जाके टिकट बुक करूंगा? नहीं, आई विल वेट फॉर द रिव्यूज, आई विल वेट फॉर द वर्ड ऑफ माउथ, और अगेन रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ पे भी ना कभी काफी बायसनेस होती है, सो आई सॉर्ट ऑफ एवरेज इट आउट एंड देन डिसाइड, बिकॉज अगर मूवी पिटने वाली है तो आई एज एन ऑडियंस नो कि 2 महीने में ओटीटी में आ जाएगा, एंड ओटीटी में जब आता है तो आज के डेट में सबके घर में ना बड़े बड़े टीवीज है। इट इज नॉट, वी आर नॉट इन दैट एज ऑफ स्मॉल टीवीज एंड ऑल, तो बड़े टीवीज में मैं घर में ओटीटी में फ्री में देख लूंगा कंपेयर टू गो टू अ मॉल एंड स्पेंड 3-4 thousand रुपीज जो खर्चा होता है। So today I am confused. I'll wait for the verdict first. But as an audience and a die-hard Bollywood fan, I think Bollywood needs a big hit, and I wish Brahmastra is that movie. बिल्कुल सही, जैसे आपने बोला कि बॉलीवुड नीड्स अ बिग हिट। संदीप, क्या आप मानते हैं कि this is going to be the film which will be proving as a big hit? मतलब ये क्या गेम चेंजर मूवी हो सकता है? बिकॉज
अभी इतने सारे मूवीज आए, लाल सिंह चड्ढा आया, रक्षाबंधन आया, ये सब पिट गए बुरी तरह से, राइट, इन द बॉक्स ऑफिस। तो क्या ब्रह्मास्त्र में वो ताकत है जो ये सिनेरियो पूरा चेंज कर सकता है? आपको क्या लगता है? Yeah, thanks, Avan. So before I start, I just want to quickly commend Danish ji and Gaurav ji for their respective performances in Aranyak and Humans. जी, So yeah, I seriously hope that this works. Hindi cinema definitely needs a big hit. Bollywood शब्द से थोड़ा परहेज है मुझे, but Hindi cinema definitely needs a big hit, and I hope it works, because if not for anything else, then just to, you know, get over this negative tide that has been spreading against Hindi cinema in general. And as a passionate watcher and lover of films across languages, but also Hindi cinema included, I seriously hope this is that film. बाकी तो आगे बात करेंगे। जी जी जी। दानिश जी, आपने देखा होगा अभी बॉयकॉट का ट्रेंड जो चल रहा है, बहुत जोर से चल रहा है, और कईयों का मानना ये भी है कि बिकॉज ऑफ दिस हेवी बॉयकॉट सेंटिमेंट्स, नेगेटिव सेंटिमेंट्स, शायद लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन जैसे फिल्में पिट गई बॉक्स ऑफिस में। क्या आप इस से सहमत हैं? मतलब डू यू एग्री कि ये लोगों का ही प्रक्रिया है या जो भी है जिसके लिए फिल्में नहीं चल रही हैं, और ऐसा अगर रहा तो ब्रह्मास्त्र को भी अफेक्ट करेगा? दानिश जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी। Am I audible? Yeah, you are very much audible. मैं connected हूँ? Yes. कॉल आ रही थी, सॉरी। देखिए, बाइकॉट क्यों हो रहा है, एक तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और बाइकॉट को कौन कर रहा है, और बाइकॉट को कहाँ से ये मुहिम शुरू हुई है, ये क्या है, इसका कोई थ्रेड, इसका रूट मैं हो सकता है थोड़ा सा इतना अपडेटेड ना हूँ न्यूज से या क्या है, पर मुझे समझ में नहीं आया इसका रूट कहाँ है, क्या है, किस बात का बाइकॉट है, क्यों बाइकॉट है, कौन कर रहा है, किसने इस बाइकॉट को कॉल किया है, या बस एक बाइकॉट होने लग गया है, या एक भीड़ चाल है कि मतलब हाँ चलो चलो चलो, जैसे मेला देखने जाते हैं तो सब लोग चलने लगते हैं, मेला देखने, बाइकॉट हो रहा है तो बाइकॉट जी, या इसी बाइकॉट के बीच में कोई अगर अच्छी हॉलीवुड की मूवी आती तो उसका क्यों नहीं बाइकॉट हो रहा जी, उसको सब देखने चले जा रहे हैं, और वो पब्लिसिटी भी नहीं करते इतनी, जिस तरह से एक्सटेंसिव पब्लिसिटी इंडियन सिनेमा की होती है सड़कों पे, पेपर पे और रेडियो में। आप हॉलीवुड की मूवीज को देखिए, वो इस तरह से बिल्कुल नहीं करते, बल्कि हम लोग खुद उसको सर्च करते रहते कब कौन सी आने वाली है जी। सो कमिंग बैक टू हमारा जो ये 2-3 फिल्मों के पिटने के पीछे की कहानी क्या है, इफ यू आस्क मी, आई रियली आई एम नॉट दैट केपेबल टू कमेंट ऑन दैट कि क्या उस वजह, डेफिनेटली बाइकॉट आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा उसका रोल है इस चीज को प्ले करने में, किसी भी चीज को, बट एक नेगेटिव सेंटिमेंट तो नजर आ रहे हैं कि वो क्या हो सकता है, आई डोंट नो, कि इधर लोग टिकट खरीदना नहीं चाह रहे हैं, चीजें वो खुद भी ये जान गए हैं कि थोड़े दिनों बाद ओटीटी पे मिल ही जाती है चीजें, कहीं ना कहीं सबको देखने को मिल जाती है, तो किस चीज को देखने जाएं, किस चीज को ना देखने, थोड़ा चूजी हो गई है ऑडियंस। और अब मेरे ख्याल से वो जमाना भी नहीं रहा है जहाँ पे हम कुछ भी बना दें और कुछ भी लोग देखने जाए। आजकल जो ऑडियंस है वो इतनी ज्यादा इवॉल्व हो गई है, इतना ज्यादा इंटरनेशनल कंटेंट के लिए वो एक्सपोज हो चुकी है, और जिसको इंग्लिश आती हो ना आती हो, सभी लैंग्वेज में वो डब हो रहा है, और डब ऐसे होता है जैसे लगता है कि ओरिजिनल उसी लैंग्वेज में हो रहा है। मतलब एक कोरियन शो तमिल में ऐसे डब होगा, लगेगा कि हाँ वो कोरिया के लोग तमिल बोल रहे हैं, जी वो जानते हैं तमिल बोलना, यू नो, तेलुगु। तो वो अब ये थोड़ा सा इवैल्यूएशन का टाइम है, शायद इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है कि, और ब्रह्मास्त्र मेरे ख्याल से ऐसा होगा, ऐसा ब्रह्मास्त्र चलेगा कि वो सारी चीजों को छिन्न भिन्न करेगा और ऑडियंस का फुटफॉल बढ़ेगा। इसी में एक और मूवी अभी आई थी, उनका आर्यन, क्या नाम है उनका, ये जिसमें अक्षय कुमार थे पहले पार्ट 1 में, और उसके बाद कार्तिक आर्यन थे उसमें, भूल भुलैया जी, भूल भुलैया, वो जबरदस्त चली,
वो भी आज मतलब कुछ ही दिन पहले की वो मूवी है, वो चल गई। एग्जैक्टली। तो बायकॉट का तो उस वक्त भी सीजन था, आई डोंट नो। पर ये है कि कला में बायकॉट किस बात का नहीं होना चाहिए। ये जो भी चीज हो रही है, नेगेटिव चीजें, सेंटिमेंट्स, आई डोंट थिंक कि ये चीजें ज्यादा दिन तक होनी चाहिए, या नहीं नहीं होगी। कोई ना कोई ऐसी चीज आएगी जो ये सारी चीजों को तोड़ देगी और सर फिर से कहीं ऑडियंस जो है वो जाने लगे। सर कहीं ना कहीं मुझे मैं जहां तक एनालाइज किया हूँ, इट हैज हर्ट, मतलब जो ऐसे न्यूज समाचार मिल रहे हैं कि इट हैज हर्ट, द ट्रेलर्स हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द हिंदूज। जैसे रणबीर कपूर ने जूता पहन के मंदिर में जा रहे हैं वो दिखाया है, और रणबीर कपूर कभी बोले थे कि उनको बीफ बहुत पसंद है। तो वो सब उभर के अभी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग शायद उससे प्रभावित होके वो सब सेंटिमेंट्स से वो हर्ट हो रहे हैं, एंड प्रॉब्ली दैट इज मोटिवेटिंग देम टू बॉयकॉट द फिल्म। लेकिन दूसरी जगह ये भी पॉइंट है कि ठीक है, हम ऐसे बहुत सारे चीजें बनाते हैं जो मतलब which will not go well with the section of the audience। आप महारानी के एग्जाम्पल लीजिए सर, आपने वहीं पे उसमें काम भी किया है। इट इज मतलब दो नॉट डायरेक्टली बट इट हैज गॉट इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल लाइफ बिहार पॉलिटिक्स। अब कुछ लोग होंगे जो बिहार पॉलिटिक्स को मतलब ऑफेंड हुए होंगे, राइट, बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दैट महारानी डिड वेरी वेल इन द ओटीटी। सो क्या आप मानते हैं कि it has to be the content which will drive whether it will be accepted by the audience or not? Content is going to rule. क्या आप मानते हैं? पीके मूवी आई थी आमिर खान साहब की जी, उसमें तो हर चीज को इस तरह से दिखाया गया था कि उसकी अच्छे से बखिया उधेड़ी गई थी। राइट, सुपर हिट, सुपर डुपर हिट थी। तो कभी कभी एक 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 फेज होता है, कभी कभी मेरे ख्याल से एक लहर चलती है जी कुछ चीजों की। जी तो जब आंधी आती है तो उसमें सभी दरख्त गिर जाते हैं, जी। वो अच्छे हों बुरे हों मजबूत हों कोई हों। अच्छा, तो शायद ऐसा कुछ दौर चल रहा हो, मेरा ख्याल है। और कंटेंट इज किंग, ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वो हमेशा से रहा है, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो आप ऑडियंस को रोक नहीं पाएंगे। देखिए जितनी चीजें किसी एक सेक्शन से बैन होती हैं, वो बहुत ज्यादा उसकी सेल बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। जी और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनको बैन किया गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बैन किया गया है, लेकिन उनकी सेल और उनके राइटर्स काफी फेमस हैं, ज्यादा वो चले हैं। तो वो इसलिए नहीं चले क्योंकि वो बैन हो गई थी इसलिए चल गए, उसमें कुछ था ऐसा जो लोग पढ़ना चाहते थे। वो कंटेंट पे बात आ जाती है। तो कंटेंट जब मेरे ख्याल से स्ट्रांग होगा तो क्या ही कोई चीज उसे रोक पाएगी, आई डोंट नो। मतलब कंटेंट इज किंग जी। डेफिनेटली। गौरव जी, मैं कल एक पढ़ रहा था आर्टिकल। कल राकेश रोशन जी का जन्मदिन था, तो उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो आया था कि और वो बोल रहे हैं कि वो बहुत नाखुश हैं हिंदी फिल्म्स जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, एंड बॉलीवुड फिल्म्स आर नॉट वर्किंग बिकॉज दे आर नॉट रूटेड इन आवर इंडियन प्रॉब्लम्स। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे आज की जो फिल्म है वो पिट रही हैं बिकॉज वो एक्चुअल रियल प्रॉब्लम्स दिखाते नहीं है? एज कह एन सकते हैं, एक्टर आपको क्या लगता है? किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से लागू भी नहीं होती है। मतलब ब्रह्मास्त्र तो कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे हिंदू माइथोलॉजी को इन्होंने बैकबोन बनाया होगा। और रही बात कंटेंट की, तो अगर कंटेंट अच्छा है तो कोई बैन काम नहीं कर सकता। जी अगर आपकी चीज अच्छी है तो वो आज नहीं तो देर सवेर चलेगी चलेगी। जी। मतलब शोले भी जो थी वो पहले हफ्ते में तो फ्लॉप डिक्लेयर हो गई थी, लेकिन उसके बाद आज वो कल्ट मूवी है। जी या अंदाज अपना अपना भी जब रिलीज हुई थी तब फ्लॉप हो गई थी, लेकिन बाद में कल्ट बन गई। जी। तो मेरा तो यही मानना है, अगर कंटेंट अच्छा है तो कोई रोक नहीं सकता है। करेक्ट। अब और वो सर, ओटीटी पे लोग देखते हैं कि हाँ सिनेमा हॉल में देखते हैं, ये मैटर करता है। जी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना आता है ये देखने वाली बात होगी। और मेरा एक और कहने का मतलब है कि किसी एक शख्स या किसी एक इंसान को दिमाग में रख के आप बैन नहीं कर सकते। अच्छा फिल्मों में एक फिल्म बनाने में सैकड़ों हजारों लोग लग जाते हैं। आई एम श्योर ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म में वीएफएक्स वगैरह टेक्निकल टेक्नीशियंस को मिला लिया जाए तो हजारों लोग होंगे जो इन्वॉल्व हैं। राइट। तो आप इतने सारे लोगों को निगेट नहीं कर सकते ना, उनका भी तो योगदान है। कॉन्ट्रीब्यूशंस, यस सर। यस। लेकिन इतने सारे नंबर्स जो एसोसिएट हो रहे हैं, मतलब वी गो, पीपल आर जस्ट गोइंग बाय नंबर्स, मतलब पहला दिन का कनेक्शन। अभी देखिए फॉर एग्जांपल, अभी पूरा चल रहा है स्टैटिस्टिक्स की कितने लैक्स टिकट्स सोल्ड सेल आउट हो चुके हैं। ब्रह्मास्त्र इज एट नंबर 4
followed by KGF. KGF number 3 पे था. ब्रह्मास्त्र is close to KGF in terms of selling of tickets. और फिर ये उसके बाद वो तो पब्लिसिटी के लिए करना पड़ेगा ना, वो तो बताना पड़ेगा आपको लोगों को कि भाई हम देखने जा रहे हैं, आप भी आइए. अच्छा, या इतने लोग देखने आ रहे हैं, आप भी आइए. जी वो जी. तो ठीक ही है, वो तो पब्लिसिटी के लिए अच्छा स्टंट है. और एक चीज, जब मूवी रिलीज होगा तो पहले दिन कितना कलेक्शन हुआ, दूसरे दिन कितना कलेक्शन हुआ, उस पे लग जाते हैं. हाँ, फुटफॉल पे डिपेंड करता है जी. तो आपको क्या लगता है कि कितने लोग आ रहे हैं. दीज आर द फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली डिटरमिन, क्योंकि तब जब अंदाज अपना रिलीज हुआ था, जब शोले रिलीज हुआ था, तब शायद नंबर्स के उतने महत्व नहीं थे, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है. लेकिन अब फर्स्ट नहीं, डे, नंबर्स सेकंड का डे. महत्व तो हमेशा रहा है. अच्छा जी. नंबर्स का महत्व हमेशा रहा है. जी. दानिश जी, क्या आप भी मानते हैं कि ये नंबर्स बहुत नहीं, रोल प्ले करते हैं? नंबर तो अभी नहीं, दादा साहब फाल्के के टाइम से इम्पोर्टेंट रहा है. वो जब पारसी थिएटर होता था तब भी इम्पोर्टेंट रहा है, लेकिन वो नंबर से ऑडियंस को कोई मतलब नहीं था. वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, जो प्रोड्यूसर्स होते थे, उन तक वो नंबर महदूद रहता था. और लेकिन वो धीरे धीरे अब जैसे जिज्ञासा बढ़ी, जैसे आईटी इतना एडवांस हो गया, आप जैसे फेमस जर्नलिस्ट आ गए, तो नंबर अब वो अंदर डिब्बे से निकल के बाहर तक आ गया है. और हम लोग सब नंबर पे इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, बहुत ज्यादा करने लग गए. तो ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है, तो आजकल ऐसी बात है, लेकिन हर चीज हमेशा से थी, उसके स्वरूप बदले हैं. इंफॉर्मेशन, ये नंबर्स तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैटर करते थे, अब थोड़ा सा हम लोग भी उसमें मजे लेने लगे हैं कि हाँ भाई कितने करोड़ हो गए, बताओ कितने करोड़ हो. तो मगर इनसे ये करोड़ तभी बनते हैं जब कंटेंट अच्छा होता है और फिल्म अच्छा कर रही होती है जी. वरना वो करोड़ उतना 100 करोड़ 200 करोड़ तक जाते ही नहीं है मामले. संदीप, आपको क्या कहना है, बताइए थोड़ा. मुझे तो ये ट्रेंड हमेशा से ही डिस्टर्बिंग लगा है, बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट सिनेमा. इट डज नॉट मैटर टू मी कि अगर उस फिल्म की सिर्फ एक ही टिकट बिकी है और वो मैंने खरीद के देखा है, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट फिल्म हैज टू वर्क फॉर मी. एज इट इज द फिल्म मेकर और द डिस्ट्रीब्यूटर्स बर्डन की कितने पैसे आए हैं, कितने नहीं आए हैं. पिछले हफ्ते मैंने बैंगलोर में एक पिक्चर देखी, पारंजित की तमिल फिल्म नक्षत्रम नगर गिरद. मैं और मेरा दोस्त, हम सिर्फ 2 ही थे पूरे थिएटर में. बट दैट डज नॉट मैटर टू मी, क्योंकि एक्चुअली उस फिल्म को उतने शोज मिले भी नहीं और बहुत खाली भी रहा है. बट दैट इज अ ब्यूटिफुल फिल्म. आई वाज मूव्ड बाय इट. हो गया मेरे लिए, उस फिल्म ने अपना काम पूरा कर दिया. मुझे जानना ही नहीं है फिल्म कितने पैसे बना रही है जी. जब मैं बनाऊंगा तब जानूंगा. बट अदरवाइज हाउ डज इट मैटर टू एन ऑडियंस? दैट इज माय व्यू ऑन नंबर्स. आई डोंट केयर रियली. बहुत बढ़िया. अभिजीत, मुझे एक चीज बताइए, यू वुड हैव सीन कि कितना ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, लाइक द प्रोड्यूसर्स. इट्स बीन एक्सॉर्बिटेंट, मतलब जितना बिहाइंड द सीन्स BTS बोलते हैं, इतने सारे क्लिप्स रेगुलर शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पे. दे आर प्रमोटिंग द फिल्म, गोइंग टू एवरी प्लेस, टेम्पल्स. So does it satisfy the kind of film they are making? No, I don't think so. I don't think so. Actually, मैं थोड़ा डिस्कशन एक्चुअली के सारे ये पैनलिस्ट, ये गौरव जी और संदीप और दानिश जी, तीनों की बातों से सहमत हूँ कि बॉयकॉट जो है, although it gives the air of negativity, but I don't think boycott actually बॉक्स ऑफिस पे फर्क पड़ता है. बिकॉज जो एक्चुअल मूवी एफिशिएंटो होता है वो जाएगा मूवी देखने के लिए अगर कंटेंट अच्छी हो. 83 वाज अ बिग फ्लॉप. मैं 83 हॉल में 2 बार देख चुका हूँ बिकॉज आई लव द मूवी. मैं OTT में भी 1 बार देख चुका हूँ. लाल सिंह चड्ढा मुझे शुरू से ही देखना नहीं था बिकॉज लाल सिंह चड्ढा एट द एंड ऑफ द डे वाज फॉरेस्ट गम का एक कॉपी. And I know ये बॉयकॉट का जो मुद्दा ना और बड़ा आमिर खान जी ने किया है. एवरी डे ही केम आउट विद इंटरव्यूज क्राइंग एंड दिस एंड सैड स्टोरी दैट. इसमें उनका PR मशीनरी काम किया था. बट इफ यू आस्क मी, लाल सिंह चड्ढा वाज इट एवर गोइंग टू वर्क इन इंडिया? द चांसेस आर वेरी लेस. वो एक इंग्लिश आर्ट मूवी है. कितनी आर्ट मूवीज है इंडिया में जो ब्लॉकबस्टर बनती है. तो आई थिंक मूवी फ्लॉप हो तो तब आप बॉयकॉट गैंग को ब्लेम करोगे, और मूवी हिट हो तो फिर आप परफॉर्मेंसेस को ब्लेम करोगे. आई थिंक दैट इज रॉन्ग, पहली बात. सेकंड ऑफ ऑल, अभी आप बात कर रहे थे PR मशीनरी के. I'll use the word PR मशीनरी, बिकॉज आपने बताया था कि रणवीर कुछ बीफ लेके स्टेटमेंट्स है, कुछ इधर उधर के स्टेटमेंट्स है जो PR मशीनरी. बट PR मशीनरी वर्क्स बोथ वेज.
देयर इज अ बिग पीआर मशीनरी बिहाइंड रणबीर कपूर। आप रणबीर कपूर की कोई भी मूवीज देख लो तो मीडिया हमेशा लिखती है कि मूवी भले बकवास हो, रणबीर एक्टेड वेरी वेल। यू नो देयर इज अ बायस देयर। आपको भी मालूम है कि you know Ranveer is a good actor, but is he at the level of, let's say, a Shahrukh or a Amir or a Rajkumar Rao or a Ayushmann Khurrana? Definitely not. But एक media backing होता है। आप even personal lives में देखो, Ranveer Kapoor had many girlfriends, but he was never called a Casanova. Akshay Kumar, after he was married for 10 years, he was still called a खिलाड़ी and a Casanova. So you know ये PR मशीनरी जो काम करता है ना, ये लोग अभी समझदार हो गए। लोगों को भी पता चल गया कि मूवी रिलीज से पहले आप अगर एक डिप्रेशन वीडियो निकाल रहे हो तो आप हमें बनाने के लिए निकाल रहे हो ताकि आपका मूवी टिकट्स बिक्री हो। या अमिताभ बच्चन जी पिंक के पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था ग्रैंड डॉटर को। ये ऑडियंस को भी पता चल गया कि पीआर मशीनरी जो है पूरा बनाया जा रहा है जस्ट टू इन्फ्लुएंस पीपल। पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट फूल्ड एंड इट इज अ फैक्ट दैट कंटेंट मैटर्स। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, इज द स्टेटमेंट्स व्हिच कम्स फ्रॉम एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। अभी आप देखोगे हमारे जो स्टार एक्टर्स हैं, लेट्स से द ग्लैमर एक्टर्स, इनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं काफी हद तक इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं आपको 3 एक्ट्रेसेस का एग्जांपल दे रहा हूं फ्रॉम यस्टरईयर्स एंड टुडे। यस्टरईयर का रवीना टंडन ले लीजिए, सोनाली बेंद्रे ले लीजिए, करिश्मा कपूर ले लीजिए। ना करिश्मा कपूर वर्सेस करीना कपूर, हाँ, रवीना टंडन लेट्स से वर्सेस परिणीति चोपड़ा, सोनाली बेंद्रे वर्सेस सोनम कपूर। अच्छा। सोनम कपूर, परिणीति चोपड़ा, करीना कपूर हैव नॉट अचीव्ड इवन हाफ ऑफ व्हाट द अदर 3 हैव अचीव्ड। बट उन तीनों से, यस्टरईयर के एक्टर्स, उनसे आपको एक भी एरोगेंट स्टेटमेंट कभी नहीं मिलेगा। उनसे आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा विच डीमीन्स द पब्लिक और इनफैक्ट लेकिन जो हमारे न्यू जनरेशन स्टार एक्टर्स है जो कॉफी विद करण शोज में आते हैं, उनसे अक्सर इररिस्पॉन्सिबल, एरोगेंट और स्नूटी स्टेटमेंट आते हैं जो ऑडियंस को कभी कभार लगा देती है कि अरे यार ये तो बहुत सर पे चढ़ा हुआ। रिसेंटली आलिया भट्ट ने भी एक इंटरव्यू में बताया है कि अगर आपको मुझे देखना नहीं है तो मत देखो, राइट, यू नो। हाँ, बट टिस्का चोपड़ा काउंटर्ड दैट एंड सेड दैट ऑडियंस ही सब कुछ है, आप नहीं हो तो फिर हम कहाँ। करेक्ट। एक मैं और छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, आज ही मैंने पढ़ा विजय वर्मा एक्टर। तो विजय वर्मा जी डार्लिंग्स में थे, डार्लिंग्स वाज अ लवली मूवी, बट डार्लिंग्स के पोस्टर में विजय वर्मा नहीं है। तो विजय वर्मा ने कहा कि इन्होंने मुझे पोस्टर में नहीं रखा बट इन्होंने मुझे कास्ट में रखा बिकॉज दे वांटेड एक्स्ट्रा स्टार्स इन द रिव्यू। So he knows that he is a very good actor and he's done a very good job जो उन्होंने किया, लेकिन पोस्टर में उनको रखा नहीं गया। तो you know with content coming in, with OTT coming in, now the underdog is the hero। मैं गौरव जी को जैसे ही मैं देखा वीडियो कॉल में, मैं सबसे पहले बोला you did very well in Humans and I remember you as the struggling father। सोचिए पूरे ह्यूमंस में इनका लिमिटेड रोल था। मैं इतना वेब सीरीज देखा लेकिन मुझे आज तक याद, मुझे अभी भी याद है दानिश जी, इम्पैक्टफुल, मुझे अभी भी याद है दानिश जी वो कैफे चला रहे थे आरण्यक में। मैं तो उनसे पूछने वाला था कैफे का धंधा भी कैसा चल रहा, बिक्री हो रहा है या लोगों ने उसको भी बॉयकॉट किया। यू नो नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द अंडरडॉग एंड पीपल अप्रिशिएट स्मॉल परफॉर्मेंसेस, पीपल अप्रिशिएट इम्पैक्ट, पीपल विल गिव मोर इंपॉर्टेंस टू। अगर आप हॉल में बुला रहे हो, इट बेटर बी समथिंग वर्थ द मनी, इट बेटर बी समथिंग वर्थ द। दानिश जी, क्या आप मानते हैं कि एक्टर्स लोगों को, आप जैसे एक्टर्स को बहुत ही सोच समझ के ऐसे स्टेटमेंट्स देना चाहिए, या आप जब कोई इंटरव्यू देते हो? सॉरी आह्वान, मैं बीच में, मेरे एक जरूरी फोन आ रहा है तो मैं आपसे विदा चाहूंगा, बट मैं जाने के पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आई होप ब्रह्मास्त्र अच्छा करे, हमारी इंडस्ट्री अच्छा करे जी, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सर जी। हाँ, तो दानिश जी, मैं आपको ये पूछ रहा था कि एज एक्टर क्या आप बहुत सोच समझ के, मतलब 2 कदम ऐसे आगे सोच के स्टेटमेंट्स देते हैं या इंटरव्यू के टाइम आप, सो दैट इट डज नॉट अर्क द पब्लिक, इस तरह का बहुत आप ध्यान में रखते हैं एज एक्टर्स? देखिए, जब सक्सेस मिलती है तो सक्सेस ही सिर्फ नहीं मिलती, बहुत सारी और चीजें भी जो मुझे अभी मिली नहीं है, शायद मैं इसलिए इतना आइडियलिस्टिक होकर बोल सकता हूँ। तो इंसान से गलतियां होने लगती हैं जी। वो जो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाए जी। और आपके मुंह से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, क्योंकि आपकी आदत होती है स्क्रिप्ट बोलने की, स्क्रिप्ट में डायलॉग कोई और लिखता है, आपको रिहर्स करके उसे एक्ट करना होता है। आई डोंट नो कि पॉलिटिकली कितना करेक्ट होते हैं एक्टर्स जब बोलते हैं जी, और पॉलिटिकली कितना अवेयर है वो जी, कितना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कितना वो न्यूज़ से वाबस्ता है, कितना न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, कि इतना बिजी होते हैं सब, हर वक्त शूट कर रहे होते हैं कि जी, आई डोंट नो। इसलिए थोड़ा सा भाई देखिए, बड़े बूढ़े कहा करते थे कि तुम बड़ों के सामने सोच समझ के बोलो, कम बोला करो जी। हमेशा मुझे याद है कि मैं जब बोलता था
छोटेपन में पापा डांटते थे, कम बोला करो बड़ों के सामने। तो ये सब जो बचपन की सीख होती है, ये अगर जवानी तक और बुढ़ापे तक याद रहे तो बहुत सारी परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकते जी। तो कहने का मतलब यही है कि इंसान है, गलती से कुछ निकल सकता है मुंह से, लेकिन हाँ, अगर सोच समझ के, हर कोई सोच समझ के अगर बात करे तो बहुत सारे कलेश, बहुत सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। जी। और हमारे हिंदुस्तान में एक और समस्या ये है कि हम सब लोग हर चीज पे बोलते हैं, जी। मतलब वो हमारा फील्ड हो ना हो, उसके हम एक्सपर्ट हो ना हो, लेकिन हमारा अपना एक ओपिनियन जरूर होता है। और जी। बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन की तरह हम उस चीज को रखने की जब कोशिश करते हैं तो वहां पे कभी कभी मिस कैलकुलेशन हो ही जाता है। जी। तो अब मैं चुप रहूंगा, कहीं मैं भी ज्यादा बोल दूं और कुछ मिस कैलकुलेशन हो जाए। जी। तो ये बहुत बहुत है। शुक्रिया दानिश जी, और हमारे पास समय भी खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो इस मंच में आने के लिए और ब्रह्मास्त्र के बारे में बोलने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हम उम्मीद थैंक यू। करते हैं कि आपके जो भी नेक्स्ट शो या सीरीज या मूवी कोई भी आए तो बहुत अच्छा रहे, ऑडियंस को पसंद आए। एंड ऑल्सो थैंक थैंक्स टू अभिजीत, बहुत अच्छा बोला आपने, और संदीप, अमेजिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर शो, and have a great day ahead, sir. Thank you. Privileged to be part of Thank that. you. Thanks everyone.